as we have completed the revision of the 4 lessons that we have studied. Now today we will start with the new lesson, that is lesson number 5, birds, beaks and claws. So you know what is the beak and claws? Beak means जो आपके birds की चोंच होती है, that is called beak, and claws जो उनके पंजे होते हैं, जो उनके foot में nails होते हैं, that is called claws. So we will study about the beaks and claws of birds. And in class 3rd, we have already learned about the birds, their special features and nesting habits. So हमने क्लास 3rd में पहले भी birds के बारे में पढ़ा है कि उनके जो special features होते हैं. Do you remember what are the special features of the birds that we have learned? Yes, they have wings that help them to fly. Their bones are hollow. उनकी बोन्स हॉलो होती है, खोखली होती है, जिसकी वजह से वो उनका वेट बहुत कम होता है और उनकी बॉडी बहुत हल्की हो जाती है. दे which make their body light. And wings that are made up of light feathers, जिसकी वजह से वो उड़ पाते हैं. And they have pointed, sharp, boat-shaped body. और उनकी बॉडी कैसी होती है? Pointed, sharp and boat-shaped. So that we have learned in class 3rd. These are the special features that help them to fly in the air. And we have also learned about the nesting habits. क्योंकि different birds होते हैं, वो different types के nest बनाते हैं. So we have discussed about their nests. और बहुत beautiful nests जो बनाते हैं वो हमने discuss किए थे. Now in this class or in this lesson we will learn about their feeding habits, कि वो क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, that we will discuss. Now you all know that all living organisms need food to live. So birds are also a living organism. और living being है, इसलिए उनको भी खाने की जरूरत पड़ती है. But the thing is how they eat the food. Because they don't have teeth, उनके पास teeth तो नहीं होते like other animals. जैसे हमारे dogs हैं, cat है, cow, buffaloes, camel, जो भी animals हैं सबके पास क्या होते हैं? Teeth होते हैं food खाने के लिए. But birds do not have teeth. So how they can eat the food? वो कैसे अपने food को खाते हैं. So they eat their food with their beaks and claws. So beaks जो होती है वो उनके teeth की तरह काम करती है. वो अपने beaks से food को खाते हैं और claws से अपने food को catch करते हैं और पकड़ते हैं और beak से खाते हैं. So they have beak instead of teeth. और उनकी जो beak होती है that is also very strong, hard and जिसकी वजह से वो उसको अपने फूड को खा पाते हैं, क्रश कर पाते हैं. So they use their beaks and claws to catch and eat food. And जो beaks and claws है सिर्फ खाने के लिए ही यूज नहीं होती, but they also use them to protect themselves from their enemies. तो जो ये इनके beaks and claws हैं, इससे ये अपने enemies को मार भी सकते हैं और अपने आप को protect भी कर सकते हैं. Because I have already told you that their beaks are very strong and hard. Now we have an activity. In this activity, what we have to do is visit your neighborhood areas and observe different birds on trees, in water, on the ground and in the bushes. So आपने अपने neighborhood में जो birds हैं, different birds, उनको observe करना है. और आप वैसे भी आप
ऑब्जर्व करते होंगे जब आप अपने टेरेस में जाते होंगे या कहीं घूमने जाते होंगे या आपने और भी टाइम पे बर्ड्स को ऑब्जर्व किया होगा. सो नाउ आइडेंटिफाई सम कॉमन बर्ड्स एंड ऑब्जर्व द काइंड ऑफ फूड दे ईट. सो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनके आपको नेम्स भी पता है, कॉमन बर्ड्स हैं, तो उनको आपने ऑब्जर्व किया होगा, खाते हुए भी देखा होगा उनको. सो अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने ये जो टेबल गिवन है इसको फिल करना है. सो इन दिस टेबल यू हैव 3 कॉलम्स, यू कैन सी हियर. इन फर्स्ट कॉलम यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द बर्ड. आपने ये बर्ड का नेम लिखना है. इन सेकंड कॉलम यू हैव टू प्लेस राइट द प्लेस वेयर यू सॉ इट. आपने लिखना है कि आपने उस बर्ड को कहाँ देखा है. एंड इन द थर्ड कॉलम यू हैव टू राइट फूड इट एट. तो आपने थर्ड कॉलम में लिखना है कि वो जो वो खा रहे थे उसके बारे में लिखना है कि वो क्या खा रहे थे. सो यू कैन, आई होप यू कैन इजीली राइट. और आपने बहुत सारे ऐसे बर्ड्स देखे हुए भी होंगे पहले भी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सपोज यू हैव सीन द स्पैरो. आपने स्पैरो देखी है तो यू कैन राइट हेयर स्पैरो. प्लेस वेयर यू सॉ इट, जहां आपने इसको देखा है. सपोज आपने टेरेस पे देखा है तो यू कैन राइट टेरेस. अगर ग्राउंड पे देखा है नीचे जमीन पे तो यू कैन राइट ऑन द ग्राउंड, ऑन द ट्री, और एनीवेयर वेयर यू हैव सीन इट. जहां भी आपने इसको देखा है यू हैव टू राइट दैट प्लेस. एंड देन फूड इट एट, वो क्या खा रही थी, क्या खाती है और उस वक्त क्या खा रही थी. तो सपोज वो ग्रेन खा रही थी कोई, या फिर राइस खा रही थी, या कोई इंसेक्ट खा रही थी. जो भी चीज वो खा रही थी दैट यू हैव टू राइट हेयर. एंड सेकंड, राइट डाउन अबाउट द अदर वर्ड. सपोज यू हैव सीन द क्रो. क्रो देखा है, कहाँ देखा है, ऑन द ट्री. क्या खा रहा था सपोज, तो दैट यू हैव टू राइट. चपाती खा रहा था, कोई किसी का पीस पड़ा हुआ था, पीस ऑफ चपाती, और वट एवर थिंग जो आपने देखा है. सो इन दिस वे यू हैव टू राइट डाउन about the few birds that you have seen. So here are only 4 columns. So आप 4 birds के बारे में लिख सकते हैं अगर आपको ऑब्जर्व किए हैं तो. Now, like other animals, some birds eat flesh, some eat seeds, and some eat fruits, roti, etc. So as you know that different animals also eat different types of food. We have also studied about the animals, that some animals eat grass or plants, some eat only flesh like lion, tiger, and plants कौन से खाते हैं जैसे cow, buffaloes, goat, sheep. So these are some examples of animals that eat only plants, and tiger, lion that eat only flesh. And there are some animals which eat both the things, that means plants and flesh. तो similarly in case of birds also, birds में भी ऐसे ही होता है. कुछ birds हैं जो flesh खाते हैं, कुछ birds हैं जो seeds खाते हैं, grains खाते हैं, and some eats fruit, roti, etc. So different types of birds, different types का खाना खाते हैं. So the type of birds of a bird's beak and claws is related to the type of food it eat. So जो bird किस तरह का खाना खाता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, उसकी beak और claws के ऊपर. That means जो birds होते हैं उनकी beaks and claws जो होती है वो सेम नहीं होती है बिल्कुल, वो होती है डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग टाइप की. सो उनका वो किस तरह का खाना खाएंगे दैट डिपेंड्स ऑन दैट. सो लेट अस लर्न मोर अबाउट बीक्स एंड क्लॉज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द बीक्स. सो बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. वी हैव डिस्कस्ड दैट बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ. दे यूज देयर बीक टू टीयर, बाइट, chisel and crush the food.
सो वो अपनी बीक को किस लिए यूज करते हैं? टीयर, चीरने के लिए, बाइट करने के लिए, चिजल और क्रश करने के लिए फूड को. एंड द शेप ऑफ द बीक इज अकॉर्डिंग टू द फूड हैबिट ऑफ द बर्ड. तो जो आपके बीक का जो शेप होती है वो कैसी होती है कि बर्ड किस टाइप का खाना खाता है उसके हिसाब से उसकी बीक होती है. Do you know preening? Preening means to clean the feather and set them right. जैसे आप नहाने के बाद या सोकर उठने के बाद क्या करते हैं? अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हैं, कंघी करते हैं. Why? अपने हेयर्स को स्ट्रेट करने के लिए, सीधे करने के लिए, ठीक करने के लिए, प्रॉपरली सेट करने के लिए आप कॉम्ब यूज करते हैं. बट birds use their beak to set their feathers or to clean their feathers. और जो birds अपने feathers को clean करते हैं और set करते हैं उसे हम बोलते हैं preening. So birds are preening their feathers with the help of their beak. प्रीनिंग हमने आई थिंक 3rd क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है कि प्रीनिंग से वो अपने जो फेदर्स होते हैं उनको सेट करते हैं और क्लीन करते हैं. द बर्ड्स स्प्रेड द वैक्स सीक्रेटेड एट द बेस ऑफ द फेदर्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. तो जब वो प्रीन करते हैं तो उनके जो फेदर्स के बेस में से, जहां पर आपका जड़ जिसको बोलते हैं होती है इसकी आपके फेदर की, जहां जुड़ा हुआ होता है विंग से, वहां से एक वैक्स टाइप सीक्रेट होता है, स्प्रेड होता है, निकलता है, जो उसके पूरे विंग्स में लगता है, जिससे कि वो उनके जो विंग्स होते हैं क्लीन हो जाते हैं, साफ रहते हैं और बहुत शाइनी होते हैं. यू मस्ट हैव सीन द बर्ड्स, वो किस तरह से शाइन करते हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी गंदा नहीं लगा होता. कभी भी आप उनको गंदा नहीं देखेंगे, वो हमेशा प्रॉपरली शाइन कर रहे होते हैं, उनकी बॉडी बिल्कुल साफ सुथरी होती है. वाई? बिकॉज ऑफ दिस प्रीनिंग. सो वो अपने बॉडी को क्लीन रखते हैं, साफ रखते हैं, और जो ये उनके फेदर्स के बेस में से वैक्स निकलता है वो पूरा प्रोसेस में जब ये प्रीनिंग कर रहे हैं तो वो निकलता है और पूरे में स्प्रेड हो जाता है. So this is about preening. So some birds use their beaks to fight the enemy or catch the prey. They also use it for preening their feathers. So preening I have just told you. And some birds use their beaks to fight the enemy or catch the prey. So as we have discussed that जो beaks होती है that are very strong, pointed, और जिससे वो अपने एनिमी से फाइट करते हैं बर्ड्स. आपने देखा भी होगा, यू मस्ट हैव सीन द बर्ड्स फाइटिंग. हाउ दे फाइट विद देयर बीक्स एंड क्लॉज. सो अपने बीक से वो एनिमी पे हमला भी करती है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करती है, और अपने कैच को भी कैच करती है, अपने प्रे को भी. प्रे मीन्स शिकार को भी वो पकड़ने में हेल्प करते हैं उनकी बीक. सो यू मस्ट हैव सीन द बर्ड्स फ्लाइंग एंड कैच दियर प्रे. और कई बर्ड्स इंसेक्ट्स खाते हैं तो उड़ते हुए इंसेक्ट्स को ही वो अपने बीक से पकड़ के खा लेते हैं. यू मस्ट हैव सीन. सो दे ऑल्सो यूज इट फॉर प्रीनिंग दियर फेदर्स. सो अपने फेदर्स को प्रीन करने के लिए भी यूज करते हैं. नाउ types of beaks. So in next video we will discuss about the different types of beaks, that how their beaks help to eat their food, and how the type of food depends upon the type of beak. कि किस तरह का खाना खाना है, that depends upon their beak. Thank you.